Before starting, I want you all to go to the compiler. Here are the three compiler. We are going to use the program is one. You can just put it in your browser. Hello, is my voice audible? Yes. So, guys, we, the Club of Codec, community of developer and coder, decided that we should help our seniors and teach them about the basic concept of C++. But as a codec community, our main objective was to brush up the DSA and work on competitive programming. The C++ is like our basic home, as all our competitive programming is done in our club C++. So, not wasting much time, we as a codec community are going to brush up the concepts of C++. Now, my name is Harshan, and I am from second year BTech CSE in specialization of artificial intelligence and data science. And I will teach you functions, array, pointers, and structure and union. Now, I hand over to Abhijit. Myself, Abhijit. I am going to teach you the basics of C++, which are input, output, and data types. Without wasting any further time, let's start. Have you guys put the link of the compiler in your browser? Yeah, I will just drop it in the message. सबने डाल दिया रहेगा तो I will just start now. First we'll learn about header files. In C++, we use the IOStream header file, which is input output stream. So you just put iostream.h. This will include the this header file includes the functions such as cin and cout, which will help you to take input from the user and then output it on the screen. And we'll also use as a prerequisite we'll use using namespace std. What it does is there are some standard functions in C++. Now, instead of using this, you can also type a standard double colon cin if you want to input. But that becomes very hectic when you are typing long codes. So we will just use using namespace std to make our life easier. And then we'll make a function int main. The function is where the program actually starts, the main function. You can also put void here so that you don't have to return any value. We'll discuss this in depth later. Uh, we'll just put int for now. And then we have completed this. Now we'll do a basic program that is
printing hello world. I'm pretty sure most of you have already done it, but we'll just do it regardless. First, hello world. Cout is the syntax you use for printing an output on the screen. Now, if we just run this and we just return the value because this is a function and we need to return some value here. Int. We can put void. If you put void here, we don't need to return any value, but I will stick to int for now. And if we run this, okay, there should be space here. Um, The thing is, I want to tell yeah, you yeah. that online compiler aren't good enough for many Sorry. files, so they include only basic one. .h, that's why it's not available. Just wanted to give info. Yeah, actually .h works on some compilers though. So yeah, you can use IOStream. This will be your output. And if you want to take any input, you just need to declare a variable. And for variable, there are various data types in C++, such as integer, float, character, boolean, string, and arrays. For int, you just use int. Like I will just show you int a. We'll put a is equal to 6. And to output your variable, you just use cout a and semicolon. Semicolon is used to terminate any command. So if we run this, hello world 6. Now I want to print this 6 on a new line. For that, there are two ways. First is you use backslash n. So what this does is this will print it on a new line. If you run it, it has come on the new line. And another way to go to a new line is printing endl. So this will also put it on the new line. Now, if you wanted to take some input for a variable, how you do that is you just use cin. This is a left right shift operator, and then you do a. So 6. Uh, you just need to input it here. Output में ये input हो रहा है. So यहाँ पे. If we do it on GDB, थोड़ा सा अलग रहता है वहाँ पे, but this also works. We'll just stick to this for now. So ये हमारे ये वाला प्रोग्राम हो गया. int कैसे integer कैसे input करते हैं. The same goes for float. Float is your decimal point, and character is your characters. You can just declare a character by char. We take view, for example, and then you use single inverted comma for a character. Then you use a, and if you output u here, this should work. 6a. This is the character we have given to you. You can even put any number because numbers are considered characters as well according to ASCII. अगर तुमने कैरेक्टर की जगह सीधे एक नंबर ले दिया, फॉर एग्जांपल यू पुट 90 68 फॉर एग्जांपल. सो ये 68 ASCII चार्ट रहता है एक. आई विल शो यू द ASCII चार्ट. यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द गूगल. यहाँ पे ASCIIcode.com पे भी रहता है. दिस इज योर ASCII चार्ट बेसिकली. यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स रहते हैं ये सिंबल, एंड ये जो वैल्यू लेता है दिस इज योर डेसिमल वैल्यू. So for A it is 65. So we have put 68 here, which is I guess D.
या डी इज प्रिंटेड। यहाँ पे लोअर कैरेक्टर्स के लिए, स्मॉल केस कैरेक्टर्स के लिए अलग से रहता है यहाँ पे। यू कैन चेक इट आउट लेटर if you want to do it in detail. Okay, and this is boolean. Boolean is basically to for true or false values. Basically you can just declare it as यहाँ पे just remove this bool a is equal to false. So यहाँ पे जो a है उसको false मिल गया. Another way to put false is you can just put anything other than like 556 हो गया, तो ये ट्रू हो गया वैल्यू। अगर तुमने यहाँ पे जीरो डाल दिया सो दिस इज फॉल्स, एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। तो यहाँ पे सीधे फॉल्स लिख दिया तो भी चलेगा। ओके सो एंड स्ट्रिंग एक रहता है, स्ट्रिंग इज योर बेसिक स्ट्रिंग, इसके लिए डॉट यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है स्ट्रिंग हेडर फाइल। और to make our lives easier there is a standard library which includes all the libraries which is bits std c++ dot h, and again यहाँ पे we'll just stick to iostream for now because in some compiler uh, it doesn't work but most of the इसमें iostream ये bits std++ चल जाता है। सो ये स्ट्रिंग हो गया। अरेस भी तुमको सिखाया जाएगा लेटर इन डिटेल। फिर ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, दीज आर ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक्स यूज होता है, डिवीजन के लिए ये मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट once. If you do int a is equal to say pi and then you do a minus minus this decrements a value and then cout a, so this should output 4. Yep, so this is your decrement operator. Then increment increases the value by 1. Assignment is assignment operator we use here. It is generally used from right to left when we assign the value of the right of the assignment operator to left in a variable. फिर assign addition assignment रहता है, like if you want to add some value and फिर तुम ऐसे कर सकते हो one way is a is equal to a plus 5, इससे 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे इस ये करने से अच्छा you have another way, that is this. So both are the same thing basically, ये दोनों सेम चीज है but this just it is easier to put this. So इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। ओके 15. So this is how it works. So subtract is basically the same thing, multiplication as well. Then division, modulus. The one thing you need to look for is अगर तुम दो नंबर का डिवीजन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज int a is equal to 5 and here you do int b is equal to 4 and then you make another variable which is int c is equal to a by b. Okay, and cout c. Can anyone unmute and tell what will be the value of c which will be outputted here? Anyone? Okay, so the value of c here 1.25. 1.25 is वन the right answer, but यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 1.25 नहीं होगी। वन होगी।
यस 1 होगी, बिकॉज यहाँ पे हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है। इंटीजर से क्या हो जाता है कि ये जो a बाय बी हम करते हैं ये 1.25 रहा, सो इट टेक्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू आ रही है 6.0504, तो ये इज इक्वल टू 6 हो जाता है ये अपने आप, बिकॉज यहाँ पे आपने इंट वैल्यू स्टोर किया है। इफ यू स्टोर इट एज फ्लोट, और यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा फिर, बिकॉज क्या होता है जनरली कंपाइलर में, आप जब दो इंटीजर इंटीजर को आप डिवाइड करते हो तो इससे क्या होता है, जो कंपाइलर रहता है वो उसके पास फ्लोट वैल्यू आती है, पर जब वो स्टोर करने जाता है अगर वो इंटीजर रहा, सो ही जस्ट कंपाइलर जस्ट कन्वर्ट्स इट टू इंटीजर और फिर वो स्टोर करता है। तो 6 का 6.4, इवन इफ इट 6.94, वो भी 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 आ गया। अभी कमेंट के लिए देर आर टू वेज टू कमेंट। फर्स्ट इज यू कैन यूज डबल स्लैश, इससे तुम कुछ भी लिख सकते हो लाइक, और मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स में एक शॉर्टकट रहता है दैट इज कंट्रोल स्लैश। यहाँ से जो भी तुम्हारा लाइन है जिस पे भी आप हो उसको आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। अनदर वे टू कमेंट इज दिस, सो इसके बीच में यू कैन राइट एनीथिंग in multiple lines. Up to you how you use it. Okay. Generally, programmers use this one in front of a statement because it is more convenient. Okay, that was how to comment. Then this is bitwise and assignment operator, or assignment operator XOR right shift and left shift. तो इसमें क्या होता है ना, जब आप इसमें ये सब ऑपरेटर्स लगाते हो, दिस जस्ट कन्वर्ट्स दिस टू बाइनरी नंबर्स, और फिर ये ऑपरेटर लगता है। बिटवाइज एंड हो गया। एंड में जब दोनों वैल्यू ट्रू रहे तभी जो फाइनल आउटपुट रहता है वो भी ट्रू रहता है, लाइक 1 1 बिकम्स 1 विद द एंड ऑपरेटर, 0 0 0 रहता है। एंड देन आपने एंड पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक गेट्स में, फिर और के लिए दिस इज और ऑपरेटर। फिर और जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट रहता है वो जो शिफ्ट करता है एक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 0 1 1 रहा, इफ यूज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो 0 1 0 1 ऐसा हो जाएगा वो। दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज जॉर में बस जो अगर डिफरेंट रहे डिजिट्स तो वो 1 आ जाएगा, और अगर सेम रहे तो 0 आ जाता है वो। दिस इज नॉर, 0 0 1। फिर ये इसमें सिर्फ 0 जब सेम आया तभी 1 हो जाता है। 9 में 1 1 जब सेम होता है तब फॉल्स रहता है, बाकी केसेस में ट्रू रहता है। सो दिस वाज योर ऑपरेटर्स। इसके बाद भी ऑपरेटर आएंगे। दिस, सो एक एक्टिविटी है टू मेक अ बेसिक कैलकुलेटर, दैट इज उसमें आपको इफ एल्स वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस एडिशन ऑफ टू नंबर्स करके दिखाना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। आई विल गिव यू लाइक 4 minutes टू डू दिस। लाइक आपको बेसिक एडिशन करना है बस, सिर्फ इसमें से एक आप चूज कर सकते हो इन चारों में से, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर बेसिक कोड। आप यहाँ पे इंट ए भी कर सकते हो, आप यहाँ पे एक इनपुट ले सकते हो यूजर से, ए के लिए, ए और बी के लिए एक इनपुट लेके फिर आप ये कर सकते हो।
If anyone wants, they can share their screen as well. और जो डिवीजन वाला है, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू टाइप कास्ट. यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया. ये हमारा एडिशन डिवीजन का प्रोग्राम रहेगा. यू कैन डू द एडिशन वन. यहाँ पे सी आउट कर दिया हमने. विल जस्ट पुट दिस वैल्यू एज डबल. डबल इज ऑल्सो अ डेटा टाइप. इसमें डेसिमल नंबर स्टोर होता है, बट द लार्जर बिट. फ्लोट से कम बिट स्टोर होता है. एंड देन a divided by p. If we run this, 6 5 1.2. तो दिस इज टाइप कास्टिंग. अगर हमने टाइप कास्टिंग निकाल दी, हेलो. सो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा. या सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली अभी स्टार्टिंग ही है सेशन का, इसलिए वो पूछ रहा था जस्ट. इफ पॉसिबल इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? या वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन. विल जस्ट टेल यू गाइस, हम अपलोड करने वाले. ओके, श्योर, फाइन. थैंक यू. या या ये तुम्हारा टाइप कास्टिंग वाला, ये टाइप कास्टिंग से इश्यू सॉल्व हो जाता है अगर हमने ये यूज किया. सो 6 7 0.85. This is typecasting. सबका हो चुका है क्या ये? ओके, सो आई होप सबने कर लिया होगा बेसिक कैलकुलेटर, which is division of two numbers, multiplication of two numbers. It was pretty easy. अभी हमें अगर रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर, तो अभी हम कैसे करेंगे? उसके लिए वी यूज मॉड्यूलो ऑपरेटर. बेसिकली हमारे पास अगर ऐसा है, वी हैव a is equal to 6 and b is equal to 4. तो अगर इन दोनों को डिवाइड किया हमने, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2. सो 2 लाने के लिए हमें अभी रिमाइंडर फाइंड करना है, क्योंकि डिवाइड करने से तो हमें डिविडेंड मिल जाता है. डिविडेंड मिल जाता है. सो इसके हाँ, डिविडेंड मिल जाता है. सो टू फाइंड द रिमाइंडर यू यूज a मॉड्यूलो b. इससे 4 डिवाइड बाय 6 हो जाता है एंड द रिमाइंडर इज 2. सो इट शुड प्रिंट 2 राइट नाउ. 2. सो वैसे रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो.
कुछ प्रॉब्लम्स में ये लगता है रिमाइंडर का। फिर और ऑपरेटर्स हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हम ये बहुत यूज करते हैं इन या ओके टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग में बेसिकली ना क्या होता है, अगर हम a डिवाइड बाय b डायरेक्टली कर दें, उससे क्या होता है कि अभी हमने इंटीजर वैल्यू से लिया है, सो ये जब डिवाइड होगा तब ये डिवाइड होके इंटीजर में चला जाएगा वापस, जब हम इसको आउटपुट देंगे तो उसके लिए वो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं कंपाइलर का, उसके लिए वी यूज टाइप कास्टिंग। उससे क्या हो जाता है, अगर हमने ये डबल करके, डबल इज अ डेटा टाइप एंड यहाँ पे फ्लोट भी कर सकते हैं, नो इश्यू, फ्लोट भी कर सकते हैं। सो इससे क्या हो जाता है, ये जब स्टोर होता है ये वैल्यू, तब ये इंट में ना जाके फ्लोट में चले जाता है ये वैल्यू। सो इफ वी आउटपुट दिस वी गेट 1.5। yep, you're welcome. So these are the comparison operators. Equal to, which is equal to sign. Not equal to is not not sign and equal to sign. Assignment operator basically. Then greater than, less than, greater than and greater than or equal to, yeah, less than or equal to. These are the your comparison operators. फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं यहाँ पे, एंड और फिर नॉट। दीज आर योर ऑपरेटर्स। एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ हाउ इट इज सपोज टू वर्क। इफ एक बार ले लेते हैं डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स। सो इसमें नहीं कि आप कंडीशंस लगा सकते हो, एंड इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड द ब्लॉक ऑफ कोड इज रन। तो इसमें आपको दो टाइप के मिल जाएंगे, इफ एल्स एंड स्विच। इफ एल्स के भी बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं, इफ एल्स, एल्स इफ, आप सिर्फ इफ यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग एल्स। तो दोज आर ऑल द वेरिएंट्स। हम और एक नेस्टेड इफ भी रहता है। यू कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन इफ एल्स इटसेल्फ। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ एक, इफ a इज ग्रेटर देन पाई, अगर a पाई से ग्रेटर हुआ तो ही ये कोड अभी रन होगा। सी आउट, ये हमारा कोड हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू हमने 6 दे दी है। ओके, और हम एल्स एल्स का भी एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। Okay, and instead of just putting it as a value, we'll just take it on from the user, which is you do that by cin a। आप एक बार एक साथ मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हो वेरिएबल में। ये b हो गया, so you can just put this again and b। इससे क्या हो जाएगा, आप दो वैल्यूज साथ में ले पाओगे instead of putting another cin statement with that। so a हो गया ये, run, this is 4 which is less than pi, not greater than pi। और एक बार रन करके देखते हैं, which will be 6 greater than pi। okay, so this is your function। अगर हमने pi डाल दिया, if we put pi here, okay, hold on, if you put pi here, so not greater than pi I am। so इसके लिए what we do is we can use this greater than and equal to।
ये वाला, सो इससे वो इक्वल टू 5 भी हो जाएगा, दिस वन, but this is technically correct cause 5 is not greater than 5. Okay, so switch के लिए, switch is also easy, we'll jump to switch later. else if एक रहता है, else if के लिए we can use another condition. अगर हमने ये बोल दिया तो इससे क्या होगा कि अगर 5 के इक्वल हो तो यहाँ पे चला जाएगा, अगर 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ पे चला जाएगा, फिर अगर ये नहीं हुआ तो ये सेकंड इसमें जंप करेगा else से, फिर वो ये वाला चेक करेगा, उसके बाद it will just terminate or you can just put else again and then see out z anything. So this is also valid. यहाँ पे आप else if यूज कर सकते हो टू कंडीशंस, अगर आपका पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों एक नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस, सो इसमें से पहला कंडीशन रन होगा इफ वाला, else if वाला रन नहीं होगा, because that's the point of using else if. ये होगा नहीं तो ये होगा, फिर नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे हम ये कर दिया हमने, and if you just run this, okay, so z आ गया, होल्ड ऑन, इसकी जगह मैं 6 कर देता हूँ, सो नाउ इफ आई पुट 6, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 हो गया और a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 डाल दिया मैंने, दो इसको तुम कोई कैसे भी एडिट कर सकते हो, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन रन हुई, उसका उसके अंदर की इफ कंडीशन रन हुई, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. We'll come back to switch again. Now you can use this thing in calculator as well. Hmm. हाँ, टाइप तो कर रहे हैं बट थोड़ा स्क्रीन फास्ट चेंजिंग हो रहा है. हाँ हाँ, ओके ओके. सो ये तुम्हारा बेसिक कोड हो गया है, इफ एल्स इफ कैसे यूज करते हैं. आपका हो जाने के बाद जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल स्टार्ट विद स्विच स्टेटमेंट. हम एक बेसिक नंबर ऑफ डेज कोड करेंगे उसमें, कि 1 आया तो मंडे हो गया, 2 आया तो ट्यूसडे, विल कोड दैट विद स्विच. और एक चीज, अगर यहाँ पे आपको दो कंडीशंस डालना है, अगर इफ में,
तो उसके लिए you can use this if you want both the conditions to be satisfied at the same time. अगर आपको चाहिए कि 5 से greater हो number and the number should be less than a should be less than 7, तो इसके लिए क्या होगा, अभी जो a आएगा ये पहले ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड फिर ये अंदर जाएगा कोड के यहाँ पे, एंड दिस इज योर बेसिक इंडेंटेशन. यहाँ पे जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस जस्ट टू मेक द कोड मोर रीडेबल. Yeah, as long as you take care of the terminators. यहाँ पे आप जो ब्रैकेट डालते हो ये बराबर होना चाहिए एंड देन द सिंपल सिंबल. मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ वैसे, बट फॉर बेटर रीडेबिलिटी you need to use indentation ऐसे. So if I run this, it will be 6 greater than 5 less than 7. If I run the same thing with 8, तो रन नहीं किया ये because a is not less than 7. पर अगर यहाँ पे मैं और डाल दूं, एंड से क्या होता है, एंड से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें की, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी चल जाएगा ये कोड अभी, ग्रेटर देन 5 लेस देन 7 8 के लिए यहाँ पे. इस वाले कोड में लाइन नंबर 8 पे जो लास्ट में एंड 1 जो है वो एंडेल क्या है? बताया था मैंने, एंडेल इज बेसिकली टू प्रिंट अ न्यू लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये डाल दिया यहाँ पे 1 2 3, तो इससे क्या होगा 8, यहाँ पे आपने डाल दिया 6, तो इससे क्या होगा ये 1 2 3 है ये नए लाइन पे आ गया. अगर मैंने ये एंडल हटा दिया यहाँ पे, सो इफ यू रन दिस अगेन तो ये सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा. अनदर वे टू डू दिस इज स्लैश बैक स्लैश एन, इससे भी हो जाएगा आपका ओके. यहाँ पे. हो गया है क्या सबका? यस. ओके, सो हम अभी स्विच केस सीखेंगे. विल राइट अ बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम वीक ऑफ द डे जज करेंगे फ्रॉम द नंबर. विल टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर डे. इससे क्या होगा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट डेटा टाइप का ऑफ डे कॉल डे. हम ये इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे यूजर से. सो उसके बाद व्हाट विल डू इज हम उनको एक प्रॉम्प्ट भी दे देंगे. द डे नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7. विल स्टार्ट 1 फ्रॉम मंडे.
एंड विल पुट एंडल, इससे न्यू लाइन पे चले जाएगा। ओके, सो सी इन डे हमने एक इनपुट ले लिया यूजर से। सो स्विच में क्या होता है अभी, यू पुट स्विच यहाँ पे ऐसे, फिर और एक पैरेंथेसिस आ जाता है एंड देन यू पुट इन डे अंदर, और फिर कर्ली ब्रेसेस ऐसा। सो ये क्या हो गई, स्विच स्टेटमेंट है तुम्हारा, इसके अंदर ये डे वेरिएबल देगा। सो स्विच में क्या होता है, इसमें एक ही वेरिएबल चलता है बस। अभी यहाँ पे डे हो गया, सो ये डे वेरिएबल ले रहा है विथ केस हमने 1 कर दिया। इसका मतलब अगर डे की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या होगा, अभी हमें अभी मंडे चाहिए 1 पे, मंडे हैंडल। दिस इज फॉर मंडे। अभी ट्यूसडे के लिए हम सेम चीज करेंगे, पर इसमें और एक चीज का ध्यान रखना है, यू नीड टू यूज ब्रेक हियर। क्या होगा अगर आप ब्रेक यूज नहीं करोगे तो वो नीचे चले जाते जाएगा। हमने केस 2 डाल दिया तो वो केस 2 में चला जाएगा, फिर केस 3 में भी चला जाएगा। विल सी दैट लेटर। अभी हम बेसिक कोड लिख लेते हैं इसका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए सबका। नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ये। केस 3, आप 4 के लिए भी कर सकते हो, इफ अगर आपको स्लोली स्लोली जाना है तो। सिक्स के लिए सैटरडे, एंड फिर एक संडे का आ जाएगा केस 7, अगर 7 रहेगा, यूजर ने 7 डाला तो सी आउट संडे कैंडल। और फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया तो भी चलेगा, बिकॉज दिस विल बी द एंड। अगर और एक ये कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी नहीं रहा, अगर यूजर ने इनमें से कुछ भी नहीं डाला तो उसके लिए भी विल सी अ केस। अगर 1 2 3 4 5 6 7 से कुछ भी नहीं रहा तो आप सिंटैक्स देख लो ये कैसा है। अगर 1 आया, केस 1 कोलन सी आउट मंडे एंडल, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ब्रेक नहीं हुआ तो वो नीचे चला जाएगा। इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। I will show you the output here. The day number should be from 1 to 7. I put in 7. It should give us Sunday here. तो संडे आ गया वो वैसे। सबने ये बेसिक कोड कर लिया है तो जस्ट इन्फॉर्म मी, सो वी कैन जंप इनटू सम वेरिएशंस, और इसमें एरर क्या क्या आ सकते हैं आपके।
इसमें एक एरर हो सकता है कि डिफॉल्ट वाला, कि अगर यूजर ने 7 की जगह कुछ और डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन दिस, मैंने 8 डाल दिया यहाँ पे, 8 को तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया यहाँ पे, सो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो उसके लिए वी कैन पुट अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। इससे कोड और ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है अगर यूजर कुछ अलग डाल देता है तो। आई होप पूरा कोड अभी दिख रहा रहेगा स्क्रीन पे। आई होप सबका हो गया है अभी ये वाला, द बेसिक स्विच केस कोड। सो इसमें कुछ एरर आ सकते हैं। फर्स्ट एरर इज ये डिफॉल्ट वाला, ये मैंने बता दिया अभी। अगर अभी लेट मी रन दिस एंड आई पुट हियर 8, नॉट अ वैलिड डे। अगर यूजर ने 1 to 7 में डाला ही नहीं तो। अनदर एरर कैन बी इफ यू डोंट यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट हियर। अगर आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया, अभी हमने अगर 6 डाल दिया यहाँ पे, तो वो 7 में भी चला जाएगा कंटिन्यू। ये स्टेयर केस जैसा आ रहता है, स्विच स्विच केस। सो नाउ एज अ स्टेयर ये नीचे चला जाएगा। नाउ 6, ये देखो यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे 7 में जाके कट हो गया। ये तो 7 से जाके फिर से डिफॉल्ट में भी चले जाता, एज अ स्टेयर जैसा ही है। तो यहाँ पे ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट यूज ब्रेक, द कोड विल नॉट रन एज यू वांट। कुछ कुछ इसमें ये यूजफुल भी है, लाइक आपको बोला गया कि अगर आपको 4 से सारे डेज चाहिए सामने के, सो यू कैन जस्ट रिमूव ऑल द ब्रेक स्टेटमेंट्स हियर टिल संडे। सो आपको वो सब प्रिंट हो जाएगा। लाइक दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। 4 और 3 के लिए भी निकाल दिया यहाँ पे, 2 एंड 1 के लिए भी निकाल दिया। सो इफ आई आउटपुट दिस नाउ, अभी यहाँ पे मैंने 2 डाला, सो 2 से लेके 7 तक मेरे को सारे डेज मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पे मंडे नहीं प्रिंट हुआ बिकॉज मंडे हमने ऊपर डाला था। इट इज जस्ट लाइक अ स्टेयर केस। आई होप सबने कर लिया होगा ये। सो यहाँ पे यूज ऑफ बेसिक इफ एल्स स्विच इन अ कैलकुलेशन फॉर 2 numbers। तो वी आर गोइंग टू मेक अ कैलकुलेटर नाउ। हमने ये देख लिया स्विच केस कैसे यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट टू मेक अ कैलकुलेटर, एन एक्चुअल कैलकुलेटर। हम यूजर को पूछेंगे कि
what they want. If they want to uh, add, if they want to subtract, हम ये पूछेंगे यूजर को, और फिर यूजर हमें बताने के बाद हम उसे वो ऑपरेशन करके दिखाएंगे, करके देंगे उसे, आई मीन। सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे डे की जगह ऑपरेटर के लिए ओपी कर देते हैं, और हम ये ओपी ले लेंगे। यहाँ पे 4 ही टेस्ट केस आएंगे, आई मीन। ये निकाल दिया हमने। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, बिकॉज वी ओनली वांट ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सो और यहाँ पे सी आउट में हम डाल देंगे एंटर एन ऑपरेटर। और इसके पहले वी नीड 2 नंबर्स, वो 2 नंबर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, वो वैसे ही पता चलेगा। सो हमें 2 नंबर्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड विल टेक दोस 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, और अभी विल यूज अनदर डेटा टाइप फॉर दिस, ताकि हमें वो टाइप केस करना ना पड़े, दैट इज फ्लोट। हमने अगर फ्लोट ए एंड बी ले लिया, इससे क्या होगा, हमें हमें जो डिवीजन में एरर आता था, वो पॉइंट डेसिमल वाला, वो एरर नहीं आएगा हमें अभी, अगर हमने फ्लोट ले लिया डायरेक्टली। तो हम एक सी आउट स्टेटमेंट दे देंगे यूजर को, एंटर 2 नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे टू मेक इट लुक गुड, and to input value seen A B। सो इससे 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विल आस्क द यूजर कि उनको क्या ऑपरेटर चाहिए। सो ऑपरेटर कौन से होंगे, विल फॉर ऑपरेटर वी विल यूज इन्वर्टेड कॉमा में एडिशन, एडिशन के लिए प्लस लेंगे हम, सब्ट्रैक्शन के लिए हम ले लेंगे माइनस, सिंपल माइनस, डिवीजन के लिए डिवाइड ले लेंगे एक स्लैश सिंबल, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल ले लेंगे ऐसे, एंड दैट इज, दोज आर ऑल योर ऑपरेटर्स यहाँ पे। तो ये जो ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे ओपी कर देते हैं अभी, ओपी, क्योंकि ये स्विच केस में अभी ये ऑपरेटर जाने वाला है। सो कि अभी केस, अभी 1 की जगह 1 हम तब यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू आएगी वहां पे, तो अभी हमें ऑपरेटर के लिए यूज करना है। तो अगर प्लस डाल दिया यूजर ने, उसके लिए अभी हम क्या आउटपुट देंगे यूजर को, ए प्लस बी, दैट्स व्हाट वी वांट टू रिटर्न, ए प्लस बी। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने डाल दिया था, अगर सब्ट्रैक्ट करा तो a माइनस बी आ जाएगा। वैसे ही डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आ जाएगा। और यहाँ पे इंट की जगह यहाँ पे कैर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टर,
हम इनपुट लेते हुए कैरेक्टर ले लेते हैं, हमें इंटीजर में नहीं ले सकते बिकॉज। और यहाँ पे आ जाएगा फॉर डिवीजन a divided by b, and फिर केस 4 this will be multiplication a into b। C प्लस प्लस में आप अगर ऐसा प्रिंट कर रहे हो इंट n, अगर आप ये बड़ा n ले रहे हो और आप ये छोटा n ले रहे हो, दिस बोथ आर टोटली डिफरेंट। C प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव, सो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपर केस और लोअर केस का। So this will be our program और not a valid operator कर देते हैं। All right, this should work fine now। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। I will give you like 4 to 5 minutes to write this program, calculator वाला। Then we can move on to conditional loops। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का ध्यान रख लेना बस, नहीं तो सभी हो जाएगा ये। ओके, इसका आउटपुट देख लेते हैं अभी। We will now run this program। यहाँ पे 7 ले लिया, 8 ले लिया एंड यहाँ पे एंटर, एंटर एन ऑपरेटर, 15 आ गया। हाँ, और एक चीज, अगर यहाँ पे हमने फ्लोट की जगह इंट ले लिया होता, सो यहाँ पे बस टाइप कास्ट करना पड़ता a डिवाइड बाय b के पहले डबल करके। इट डज द सेम थिंग। अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लेना है, यू कैन इवन यूज हियर इंट, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, वो सब भी आप कर सकते हो। और हम यहाँ पे एक मॉड्यूलो वाला केस भी हम डाल सकते हैं, टू फाइंड द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड टू नंबर्स। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी आपको दिखा दिया कि ये डेसिमल में आ रहा है। And let's do multiplication once। 5, 6, this operator, this will be 30। I hope you have done that।
And now we'll move to the next topic, which are conditional loops in C++. First is while loop, second is do while, and third one is for loop. Okay, so let's check the while loop first. इसका सिंटैक्स देख लो पहले. while हो जाता है, while कीवर्ड है, while आ जाता है, फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन आ जाती है, and then you need to do this curly braces, और ये curly braces के पीछे आपको कोड आ जाएगा. So we'll just cut this program first, एडिशन का, एंड यहाँ पे हमने int a ले लिया, int a is equal to 1 ले लिया. मैंने दिखाया था if इसके साथ, if के साथ, if में जो आप कंडीशन यूज करते हो, बेसिकली यू नीड टू यूज द सेम कंडीशन हियर, सिर्फ ये लूप हो जाता है एक. सो a is equal to 1 कर दिया, एंड फिर ये जो है बीच में, यहाँ पे आपका एक्चुअल कोड आएगा इस लाइन पे. तो आपको वाइल लूप्स में एक ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट लूप नहीं हो जाना चाहिए. अभी मैंने यहाँ पे a is equal to 1 ले लिया, और a की मैंने पहले 1 ले ली थी, तो ये लूप में तो जाएगा यहाँ पे वाइल में, और मैंने सी आउट कर दिया हेलो एंड. सो अभी अगर मैं इसको रन करूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस int a is equal to 1 while ले लिया, एक कंडीशन डाल दी. अगर मैं इसको अभी रन करूं, तो ये देखो इनफाइनाइटली रन हो रहा है, अभी नीचे तक चले जा रहा है. तो टू अवॉइड दिस आपको एक टर्मिनेटर भी डालना पड़ता है. टर्मिनेटर इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने से भी होता है टर्मिनेट. दैट इज योर टर्मिनेटर. यू पुट, अगर मैंने a प्लस प्लस कर दिया, सो व्हाट हैपेंस इज, ये वाइल वाला ये कंडीशन चेक होती है पहले, फिर ये नीचे कोड में जाता है, सीक्वेंस में आपका जो भी कोड है वो रन होता है. यहाँ पे अभी सी आउट है, तो पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद a प्लस प्लस, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो फिर से ऊपर जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा इफ a इज इक्वल टू 1 1. अगर ये नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा तो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी है. सो लेट्स जस्ट रन दिस वंस. तो यहाँ पे एक ही बार हेलो आ गया. अगर मैं यहाँ पे a is equal to a is greater than 1 कर दूं, तो भी ये इनफाइनाइटली रन करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रॉपर कंडीशन नहीं दी. सो इफ आई डू दिस and then I do here a minus minus, this is your decrement operator. If you run this should run exactly 5 times. 1 2 3 4 5. now loops are very useful. अभी मैंने hello की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने a डाल दिया, सो 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा. आपको पैटर्न बेस्ड अगर डीएसए प्रॉब्लम्स रहे या एनी लाइक कंपेटिटिव प्रॉब्लम्स जो कंपनीज आपको देती है, दिस इज वेरी यूजफुल देयर. वाइल लूप, सारे लूप्स यूजफुल है, बट वाइल इज अ शॉर्ट लूप, ये यूज करते हैं जनरली. अभी डू वाइल भी एक है. आप आई होप आपको समझ गया रहेगा इसका सिंटैक्स. Now I will show you the do while loop. Okay, एक बार loops देख लेते हैं, then we will conclude this session यहाँ पे. From my side, यहाँ पे do क्या होगा, if we do a is equal to 1 यहाँ पे, and यहाँ पे मैंने phi या कुछ भी ले ली,
सो यहाँ पे कंडीशन हमने दी है a is equal to 1. So this condition doesn't satisfy this number. तो ये प्रिंट होगा कि नहीं? तो इसके लिए हम डू यूज करते हैं ताकि एक बार ये लूप में चले जाए, एक बार ये कमांड्स में चले जाए और फिर ये कंडीशन चेक हो. तो इफ यू रन दिस नाउ, एरर आ गया बिकॉज यू नीड टू टर्मिनेट दिस. नाउ इफ यू रन दिस, 5 आ गया 1. So this terminator is also very important. Mistake हो जाती है and then this is your do while loop. अभी your next loop was for loop यहाँ पे. So for में 3 statement रहते हैं. So generally you use for when you know the final, like कितनी बार आपको print करवाना है. Like अभी मैंने for use कर लिया int I is equal to 0. यहाँ पे 3 टर्मिनेटर्स, 2 टर्मिनेटर्स रहते हैं. फर्स्ट इसमें आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है. लाइक अगर मैंने बोल दिया इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिर आई, फिर उसके बाद कंडीशन देनी पड़ती है. पहले इसमें डिक्लेरेशन, दूसरे इसमें कंडीशन. इंट आई इज लेस देन 5, ये कंडीशन दे दी मैंने. उसके बाद मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस एंड देन दिस. सो यहाँ पे मैंने दे दिया है. यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट रहता है ये 1 टाइम एग्जीक्यूट करता है. ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट करता है. जिस यहाँ पे हम बेसिकली अपना कंडीशन डालते हैं और ये तीसरे में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं. सो इफ आई डू दिस नाउ ए, तो इससे क्या होगा, अब ये 5 टाइम्स रन करेगा ये लूप. तो ए 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा. यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट हो गया. अभी मैंने अगर आई डाल दिया इसकी जगह आई, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा. अभी ये बात के भी ध्यान रखना है आपको कि ये आई जो है ये लोकल आई है बस. दिस इज लोकल. ये अगर आप यहाँ पे इफ लगा दिया आपने और आई फिर से आपने चेक कर लिया, तो दिस वोंट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये आई जो है ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप यहाँ तक ही है. जबकि ये इंट ए इज इक्वल टू 5, इसका स्कोप पूरे फंक्शन में आता है, मेन फंक्शन में. अभी सो दिस वाज योर फॉर लूप. यहाँ पे यू कैन यूज ब्रेक अगेन. सो इससे एक ही बार प्रिंट हो जाएगा. यप. सो दिस इज योर ब्रेक. और एक स्टेटमेंट रहता है विच इज कंटिन्यू. ये हम जनरली यूज नहीं करते ज्यादा बिकॉज दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, बट यहाँ पे बस बाकी का स्किप हो जाता है. लेट मी शो यू. तो अभी क्या हुआ ना, ये क्या हुआ, ये जो कंटिन्यू था इसने जो इसके सामने के जो कोड है वो इसको इसने स्किप कर दिया. पर इसके जो पहले के जो कोड रहेंगे, यहाँ पे मैंने बोल दिया सी आउट हेलो. सो हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, हेलो 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 हेलो. सो एंड यू यूज एंडल यहाँ पे. सो दिस विल लुक अ बिट क्लियर. यहाँ पे दिस इज यूज ऑफ योर कंटिन्यू स्टेटमेंट. ये क्या कर देता है, लूप को सीधे एंड पे ला देता है. सो एंड पे जाके ये फिर से लूप ऊपर जाके इंक्रीमेंट होता है, कंडीशन चेक होता है एंड देन फिर से रन होता है लूप. दिस वाज योर कंटिन्यू स्टेटमेंट. और एक स्टेटमेंट रहता है विच इज गो टू कमांड. ये प्रोग्रामर्स जनरली यूज नहीं करते बिकॉज दिस इज फ्राउंड अपॉन इन कम्युनिटी. गो टू इज बेसिकली दिस. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गो टू रहता है ये स्टेटमेंट को ये पूरा फ्लो ऑफ प्रोग्राम चेंज कर देता है गो टू स्टेटमेंट. पर ये जनरली हम यूज नहीं करते हैं
We only use it for like emergency statements. उसमें भी यूज नहीं करते, पर दिस इज यूजफुल, दिस इज यूज्ड रिगार्डलेस, कि अगर आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह रही तो उसमें आप गो टू यूज कर लो. गो टू हेलो कर दिया मैंने, एंड हेलो पे यहाँ पे आ गया. I will just show it to you once, see how this works. If a is equal to 5, okay, so a plus plus. So if you run this, and मैं एक cout statement में डाल देता हूँ to verify. ओके, अभी अगर मैं ये रन करूंगा, इनफाइनाइट टाइम से रन हो जाएगा. सो बेसिकली ये गो टू मैंने जो हेलो डाल दिया, ये क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू 5 है तो ये गो टू में जा रहा है, गो टू हेलो, हेलो पे शिफ्ट कर रहा है अपना फ्लो, फिर हेलो से फिर से यही इफ चेक हो रहा है. तो ये भी एक लूप टाइप बन गया, राइट. सो अगर आई एम सॉरी, अगर मैंने a प्लस प्लस पहले यूज कर दिया इसके, सो ये एक ही बार रन होगा यहाँ पे हेलो. सो यू कैन यूज दिस टू मेक अ लूप, बट it is not very used in programmer community, though ठीक है. Now this was your for and use of go to वगैरह statements. अभी infinite loop का मैं बता दिया मैंने, break, continue, go to, how to avoid infinite loops, ये सब बता दिया. infinite recursion क्या रहता है, फंक्शन में जो रिकर्जन रहता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, आई थिंक इसके बाद ये फंक्शंस. So this was the end from my side. I will hand over the presentation to Harsh. Thank you. Is my voice clear? Yeah. Yes. Hope so my screen is visible. Hello, my name is Harshan and I'm going to, after Abhijit, I'm going to continue on function. अभी अभिजीत ने बहुत अच्छे से बताया था. हिंदी से ठीक हो ना अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो, या मैं इंग्लिश ही करूँ? Yes, comfortable है. ठीक है. वो अभी अभिजीत ने बहुत अच्छे से बताया, मतलब जो भी सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स होते हैं सी प्लस प्लस में, लाइक फॉर लूप्स हो गए और एक हो गए कंडीशन चेकिंग, मोस्टली उनसे सब हो जाता है. बट जब हम एक ऊपर स्केल पे जाते हैं, जब मल्टीपल टीम्स काम करती है, तो सब एक ही कोड पे नहीं टूट पड़ सकते. तो उसके लिए क्या लगाया जाता है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल और फंक्शन बना देते हैं. मॉड्यूल और फंक्शन में क्या रहता है कि हम अभी अभिजीत ने एक कैलकुलेटर बनाया था. इमेजिन करते हैं एयरबीएनबी की कंपनी है और उनके लिए वो एक कैलकुलेटर रख रहे हैं. तो एयरबीएनबी की जो बड़ी सी कोड होगा, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल हो गए. उनमें से एक मॉड्यूल कैलकुलेटर का हो सकता है, एक डेटाबेस का हो सकता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स रहते हैं. तो फंक्शन उन छोटे छोटे मॉड्यूल का रहता है. फंक्शन को समझने का बेसिक तरीका यही है कि समझो फंक्शन एक बक्सा है, एक ऑपरेशन की तरह, जिसमें इनपुट आता है और ऑपरेशन होते हैं और आउटपुट निकलता है. तो जिसको हम द फंक्शन का बेसिक काम, और द रीजन फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्योंकि बहुत कोड बहुत बार रिपीट होते हैं. लाइक एडिशन का कोड हो गया, ये बहुत बार रिपीट होते हैं. एडिशन का कोड तो तब भी छोटा है. मान लो एक कंपनी में एक टाइप का कोड है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो उसको बार बार टाइप करने से अच्छा हम एक फंक्शन ही बना देते कि जब भी ये रिपीट हो रहा इधर चले जाओ. और हाँ, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बोलना, डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट वॉइस में बीच में इंटरप्ट कर देता है. ऐसा कोई इशू नहीं, बीच में इंटरप्ट कर देना मुझे. अभी फंक्शन को बेस्ट तरीके से समझने का उनका सिंटेक्स ही समझ आता है. बिफोर गोइंग टू कि फंक्शन का सिंटेक्स होगा, उसे हम कॉल कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है. लाइक इंट मेन में जहां हमारा कोड लगता है, अगर देखा जाए तो इंट मेन भी एक तरह का फंक्शन है, जाकि मेन एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है कि कोड जहां से भी शुरू होगा मेन से शुरू होगा.
तो फंक्शन कॉल का सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट लिखते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट क्या है? सिंपल डेफिनेशन में तुम जो फंक्शन कॉल कर रहे हो उसको कुछ इनपुट्स दोगे, वो इनपुट्स है आर्गुमेंट लिस्ट। अब जरूरी नहीं है कि इनपुट दो, कुछ फंक्शन होते हैं इनको इनपुट चाहिए नहीं होता है, कुछ कुछ को चाहिए होता है, कुछ में जरूरी नहीं होता, लाइक देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट फंक्शन में। अब यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया, अब ये फंक्शन कॉल किया, ये तो कहीं लिखा होगा, हम जनरली इंट मेन के बाहर लिखते हैं वो फंक्शन। फंक्शन की स्टार्टिंग ऐसी होती है, एक रिटर्न टाइप लिखा होता है। रिटर्न टाइप सिंपली होता है कि ये फंक्शन है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैंने बोला ना इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट किस टाइप का दे रहा है वो बता दो। एक और चीज, इंट मेन भी एक फंक्शन था ना, तो इंट मेन एक इंट वैल्यू दे रहा है, तो हम एक्चुअली में मेन से तो कुछ निकाल नहीं रहे, इसलिए हम रिटर्न जीरो लिखते हैं। ये जीरो एक इंट वैल्यू है और ये फंक्शन एक जीरो एक इंट वैल्यू दे रहा है। गोइंग बैक टू सिंटेक्स, इंट रिटर्न टाइप में वो बताते हैं कि किस टाइप का रिटर्न होने वाली वैल्यू। फिर हम फंक्शन का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम अच्छा सा नाम दे दें ताकि समझ में आए। पैरामीटर लिस्ट सेम ही वही होता है, जो आर्गुमेंट में इनपुट दिए वही पैरामीटर लिस्ट में दिए जाते हैं। फंक्शन बॉडी में जो भी लॉजिक था, स्टेटमेंट जो भी लॉजिक था वो लिखते हैं। फिर एंड करते टाइम मैंने बोला ना इनपुट देते आउटपुट निकालते, तो आउटपुट के लिए होता है रिटर्न वैल्यू, इन द सेंस कि रिटर्न करते जो भी हमने मतलब हमें वैल्यू रिटर्न करनी थी ना, वो हम इधर से रिटर्न कर देते हैं। ये एक एग्जांपल है, बेस्ट तरीका होगा मैं कोड करके बताता हूँ। ये अभी जब भी हम जाते मतलब प्रोग्रामिंग में वो बेसिक सा दे के रखते हैं कि ये बेसिक सा कोड होता है। मैं पहले एक नेम स्पेस std डाल देता हूँ ताकि ये std दे स्कोप रेजोल्यूशन किया ना सी आउट को, बार बार करना ना पड़े, वो डायरेक्ट हो जाता है, तो इसके कारण एडवांटेज रहता है। ये कोड हटा देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ कि लाइक एक फंक्शन बनाते हैं सम का, तो सबसे पहले हमको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, इंट p q ref। मैं बताता हूँ ये क्या है। p होगा हमारा पहला इनपुट, लाइक सी आउट में मैं बोलता हूँ एंटर 2 नंबर, एंडल ताकि वो दूसरी लाइन पे चला जाए। फिर मैं यूजर से पूछता हूँ कि उसको क्या वैल्यू चाहिए थी, लाइक मतलब p और q में क्या वैल्यू डालोगे, तो मैंने p और q की वैल्यू ले ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका मैं सम निकालना चाहता हूँ, तो या तो मैं इधर डायरेक्ट कोड डाल दूं, लाइक मैं सी आउट में लिख दूं p प्लस क्यू, तो वो डायरेक्ट चल जाएगा। वरना मैं क्या एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक फंक्शन का बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर एक फंक्शन लिखूंगा सबसे पहले। फंक्शन का मेरे को क्या रिटर्न टाइप चाहिए, मेरे को दोनों का एडिशन चाहिए था, मुझे सम ऑफ 2 नंबर का फंक्शन बना रहा हूँ। मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? तो अगर दो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंट, तो मैं रिटर्न टाइप में इंट लिख रहा हूँ। फिर फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हम सम कर रहे हैं और थोड़ा दिमाग में इजी रहेगा अगर बाद में देखने आया, तो मैं सम ले रहा हूँ। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लूंगा मैं, लाइक इनपुट में क्या क्या लूंगा, इधर हम बताते हैं हम कौन से टाइप का ले रहे हैं और वेरिएबल ले, लाइक मैं ले रहा हूँ इंट ए इंट बी। इसका मतलब है यहाँ से जो भी इनपुट आएंगे वो पहले तो इंटीजर टाइप के होने चाहिए दोनों, और उनका कह लो वेरिएबल नेम, मतलब मैं ऑपरेशन करूंगा ना तो उसको ए और बी रखा है इधर मैंने। अभी मेरे को एक मैंने इसके अंदर एक बना दिया वेरिएबल सी, बस बना दी, ये लोकल वेरिएबल है, ग्लोबली नहीं जाएगा, ग्लोबल है भी नहीं इसके अपोजिट, बट इन द सेंस ये वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर के लिए, बाहर डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी मैं c इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखता हूँ, इसका मतलब c में दोनों की वैल्यू आ गई। और अब मेरे को ये वैल्यू आउटपुट में देनी, क्या करना है, रिटर्न करनी वैल्यू, तो मैं लिखूंगा रिटर्न ए रिटर्न सी। मेरे को हाँ रिटर्न सी। अभी ये जो हमने वैल्यू रिटर्न की अभी हमको लेनी है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें ये स्टोर करेंगे। मैंने यहाँ रिजल्ट करके RES शॉर्ट में लिखा था, उसमें हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे, तो रिजल्ट। फिर करेंगे हम फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसका डायरेक्ट नाम लिखते हैं और उसके अंदर इनपुट दे देते हैं। सम फंक्शन का नाम हुआ और अंदर मैंने डाल दिया p, q। और जब ये हुआ, अब मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट से, रिजल्ट एंड लाइन।
अब एक बार रन करके देखते हैं एरर देता है कि क्या देता है। एंटर टू नंबर, क्या नंबर डालू, जाने दो 510 डाल दो, 15 आया। तो अगर फ्लो देखना है कोड का तो पहले सी आउट से एंटर टू नंबर आया, सी इन से दोनों वैल्यू गई। जब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया तो पी क्यू में 5 और 10 चढ़े और वो उधर गए जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया गया था, इंट सम इंट ए इंट बी पे। ए बन गया 5, बी बन गया 10। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी किया तो 5 प्लस 10 15 हुआ। रिटर्न में सी का आउटपुट गया, वो रेस्ट में स्टोर हो गया क्योंकि असाइनमेंट था। फिर सी आउट करके हमने वैल्यू प्रिंट कर दी। इससे हमको बार बार इस सम का कोड नहीं लिखना पड़ेगा और एक ही बार में हो जाएगा, ये फायदा है इसका। बट अगर अज्यूम करो मैं दो वैल्यू दे ही नहीं रहा, मान लो मैं दे रहा हूं बस बी की वैल्यू, मतलब मेरे को चाहिए कि बी की वैल्यू खुद से हो, लाइक या तो मैं दूं तो ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि अगर नहीं भी दे रहा तो भी एक डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। सिंपल डेफिनेशन में इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ पी दे रहा हूं, या मतलब कह लो सिर्फ एक वैल्यू दे रहा हूं, वहां पे दो पैरामीटर यानी दो इनपुट की जगह है, तो कुछ इनपुट का डिफॉल्ट वैल्यू, लाइक या तो मुझे वैल्यू दो या फिर मैं ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लूंगा। जैसे मैंने बी इक्वल टू 0 किया और पी दिया है, तो अगर मैं वापस रन करूं 5 10, 5 रन हुआ क्योंकि मैंने क्यू दिया नहीं तो उससे बी को 0 मान लिया। अब अगर मान लो मैं अगर मैं क्यू की वैल्यू दूंगा तो क्या होता है, एनी गेस? नो गैस, ओके। तो अगर मैं क्यू की वैल्यू देता हूं तो 5 10 15। अब क्या हुआ, मैंने बोला था डिफॉल्ट वैल्यू यानी वैल्यू नहीं गई तो ही करेगा, बट हमने यहाँ क्यू एक वैल्यू दी थी जिसका वैल्यू 10 था, तो वो चला गया और 0 को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे हम फंक्शंस बनाते हैं। किसी को कुछ डाउट है, कोड लिखना है? नहीं, डाउट तो नहीं है फिलहाल। समझ आ गया ना? हाँ। हाँ, मतलब कभी भी बीच में इंटरप्ट कर देना अगर मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा होगा तो। ये इसका यस। था। अभी फंक्शन का मैं पॉइंटर के साथ एक अलग चीज दूंगा क्योंकि फंक्शन का इतना नहीं है, यही था बेसिक से, ज्यादा है नहीं। अभी पॉइंटर्स पे आते हैं। पॉइंटर्स में भी बहुत पढ़ाया जा सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंटर का समझो एड्रेस स्टोर करता है। लाइक हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये भी अभी के लिए उड़ा देता हूँ, कुछ काम नहीं। हमने एक वेरिएबल बना ए, उसकी मैंने मान लो वैल्यू ले ली। अभी अगर मैं सी आउट करता हूँ ए की वैल्यू तो मुझे वही वैल्यू आएगी जो मैंने ली थी। अगर हम ये रन भी कर ले 5, वही वैल्यू आ गई। बट इसका एक ये वैल्यू जो मैंने ली है इसका कोई एड्रेस होगा, कहीं मेमोरी एड्रेस कंप्यूटर के अंदर जो जहां ये वैल्यू स्टोर हो रही है, उस मेमोरी एड्रेस की अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो तो उसके लिए एक होता है। मैं सी आउट कर रहा हूँ 10% के करके देखते हैं। सॉरी, 5, ये अभी 5 पहला प्रिंट किया सी आउट का। अब ये वैल्यू क्या है जो 5 के आगे है? ये कोई बोलना चाहता है कि मैं बता दूं डायरेक्ट? एड्रेस ऑफ 5। हाँ, ये जो हमने 5 वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की थी उसका एड्रेस है, ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में उसका एड्रेस स्टोर होता है। अभी ये एड्रेस से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मैं इसके बाद ही एक बताऊंगा कि क्या यूज है, बट अभी देखते हैं। ये था एड्रेस के बारे में। पॉइंटर का अब रोल देखते हैं। पॉइंटर क्या है, उसका खुद का नहीं है, वो बस एड्रेस पॉइंट करता है। लाइक इसका दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक इंटर बनाया, मान लो मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, ये है मेरा पॉइंटर। ये क्या करता है, इसका खुद का एड्रेस नहीं होगा बट ये एड्रेस को पॉइंट करता है।
ए में होगा वेरिएबल स्टोर और स्टार पी में होगा एड्रेस स्टोर। तो अभी मेरे को अगर पी में वैल्यू असाइन, पॉइंटर में वैल्यू असाइन करनी, तो मैं कैसे करूंगा, मैं उसके एड्रेस से असाइन कर दूंगा। तो ये पॉइंटर अब ए के एड्रेस को स्टोर करता है, पी नाम का पॉइंटर ए के एड्रेस को पॉइंट करता है। अभी चलो सी आउट करता हूं मैं कुछ कुछ वैल्यू, एंडल डालता हूं। हाँ ए को करता हूँ, देखते क्या क्या है। अरे मैं वैल्यू लेना भूल गया। इनवैलिड कुछ गलत किया क्या? अरे स्टॉप मार्क गलती से डाल दिया। अगर मैं सीन के 5 वैल्यू दूं, क्या क्या लगता है, क्या क्या आंसर आएगा 4 में से? गैस करो फिर रन करता हूँ। एक तो ए का, ए की वैल्यू जो ए में वैल्यू है वो आएगी, फिर जो ए की वैल्यू का जो एड्रेस है वो आएगा, और फिर से वही एड्रेस रिपीट होगा हाँ, बिकॉज और एंड ए दिया है तो पी में ए का एड्रेस था, फिर ए का एड्रेस हमने एंड ए के थ्रू दिए, फिर हमने उस पॉइंटर पी का एड्रेस प्रिंट करने कहा। यस। नाइस, देखते क्या क्या आता है। एग्जैक्टली जैसे कहा था आपने। एक तो 5 आया जो कि है मतलब ए की वैल्यू मैंने डाली थी, ये पी में आया एड्रेस ए का, एंड परसेंट ए से भी उसका एड्रेस आया, और अब ये पी का एड्रेस है। अभी मैंने दो चीजें, मतलब ये क्लियर हुआ ना पूरा? हाँ क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट है कहीं पे भी लगे थोड़ा और पढ़ाना, मैं पक्का बोल दूंगा, बस बोल देना। अभी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सिंपल टर्म में, जैसे कि अभी आपने दो चीज देखी, एक होता है वेरिएबल, एक होता है इसका एड्रेस। तो ये स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ऐसे होते हैं। कॉल बाय वैल्यू होता है कि आप उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हो, इन द सेंस कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना, उसको आप लेते हो, उस पर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन, हाँ इसके बाद ही मैं फंक्शन में दिखाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू होती है आप उसकी वैल्यू लेते हो और उस पर काम करते हो, जितने भी ऑपरेशन करनी फंक्शन में। कॉल बाय रेफरेंस क्या रहता है, आप वो वैल्यू का सिर्फ वेरिएबल नहीं ले रहे, उसका मेमोरी एड्रेस ले रहे हो और फिर एक्चुअल में उस फंक्शन में काम कर रहे हो, उस वेरिएबल के अंदर काम कर रहे हो। दोनों का डिफरेंस कोड से बेस्ट चलेगा। मैं एक चीज पूछता हूँ, मैं पहले पूछता फिर मैं कोड करूंगा। दो मेरे को स्वैप करने हैं दो नंबर, और मैंने एक की वैल्यू ए में ली, दूसरी की वैल्यू बी में रही। मैं ये दोनों फंक्शन चलाता हूँ, किससे स्वैप हो जाएगा? उससे पहले सॉरी मैं बीच में रोका, मैं बोल रहा हूँ वॉइड, मैंने यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया कुछ। अगर आप देखो मैंने कहा था फंक्शन होता है जहाँ पे एक इनपुट दिया जाता है, ऑपरेशन दिया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। भाई इधर कोई इनपुट मतलब आउटपुट नहीं दे रहा, रिटर्न तो लिखा ही नहीं है। क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब होता है नल, कुछ आउटपुट दे ही नहीं रहे। जब कुछ दे ही नहीं रहे तो मैं रिटर्न लिख के करूंगा क्या? इसलिए इसमें रिटर्न नहीं लिखा है। अभी एक क्वेश्चन था कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा कोड स्वैप कर देगा दो नंबर को? बाय वैल्यू वाला। बाय वैल्यू वाला स्वैप कर देगा ना? हाँ
ठीक है, मैं एक बार कोड रन करके देखता हूँ, देखते कौन सा चलता है। मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट ए कॉमा बी। पी क्यू ले लेता हूँ, इंट पी। अभी मैं सी आउट करता हूँ, टेल टू नंबर टू बी स्वैप क्यू। सी आउट बिफोर स्वैपिंग, पहले दिखा देते ना स्वैप से पहले क्या था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी अभी ऊपर ये दो फंक्शंस बनाए गए, स्वैप बाय वैल्यू का और स्वैप बाय रेफरेंस का। तो क्योंकि ये वॉइड है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो मुझे जैसे मैंने सम के लिए किया था ना, एक रेस इक्वल्स टू सम लिखा था और फिर अंदर लिखा था, जरूरत नहीं, जब ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कॉल करूँ, इधर मैं पहले फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड स्वैप बाय वैल्यू, पैरेंथेसिस में कुछ नहीं होना चाहिए, इंट ए कॉमा इंट बी। स्वैप बाय वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहले टेम्प बनाता हूँ, मतलब टेम्प से स्वैप करूंगा दोनों को, इंट टेम्प। अब मैं टेम्प में पहले ए की वैल्यू ले लेता हूँ, ए को ए में बी की वैल्यू डाल देता हूँ और फिर बी में टेम्प की वैल्यू डाल देता हूँ, सिंपल। और फिर यहाँ मैं एक बार उन्हें कॉल कर देता हूँ। अगर दोनों चले तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, अगर एक ही स्वैप चला तो फिर हो जाएगा पी क्यू। और अभी उसका भी बना देता हूँ, स्वैप बाय रेफरेंस का, ये नाम का भाई कितना है वो। स्वैप बाय रेफरेंस में यहाँ पे जब मैंने स्वैप बाय रेफरेंस कॉल किया तो मैंने उसका पहले फंक्शन बनाया वॉइड से, और इंट एम्परसेंट एम्परसेंट बी, मतलब मैं उनका सिर्फ एड्रेस से कंसर्न है, मुझे उनका एड्रेस चाहिए। फिर अब मैं वापस से सेम का सेम ही कोड लिख देता हूँ, दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, मैंने बस फंक्शन से कॉल किया था, temp equals to किधर गया, हाँ। अभी क्या, अरे हाँ, सॉरी। अभी क्या लगता है, हाँ, कौन सा दोनों स्वैप रन करने वाला, अभी किसी को बोलना है क्या आंसर हो सकता है, मतलब वैल्यू का बोला कि वैल्यू का होगा, रेफरेंस का होगा कि नहीं होगा। रेफरेंस का भी होगा। ओके, मतलब इन द सेंस में कहूँ तो अगर मैं दो वैल्यू डालता हूँ, पहले वैल्यू वाला दोनों को चेंज कर देगा, फिर रेफरेंस वाला दोनों को चेंज कर देगा। हाँ, ओके, चलो ट्राई करता हूँ। एरर आया, सेम।
हाँ वो डालना भूल गया था, सॉरी। दो नंबर अगर स्वैप के लेने, मैं मान लो 510 लेता हूँ। बिफोर स्वैपिंग 510, ये तो यूजुअली था कि 510 ही रहेगा स्वैपिंग से पहले। उसके बाद वैल्यू रेफरेंस में भी 510 रह गया, रेफरेंस स्वैपिंग से हो गया। अभी कोई बताना चाहता है कैसे हुआ था, या फिर मैं बोल दूं? गैस करता हूँ, कुछ लोकल और ग्लोबल से रिलेटेड है। अगर किसी को गैस नहीं करना तो ठीक है, मैं बोलता हूँ, वरना मेरे को बीच में इंटरप्ट कर देना। सिंपल ये पॉइंट, हाँ बोलिए। जो पी और क्यू को हमने इसके स्वैप बाय रेफरेंस में एज अ पैरामीटर एंटर की है, तो वो ए के एड्रेस पे जा रहा है, तो वो ए के एड्रेस पे और बी के एड्रेस पे स्वैपिंग हो रहा है फिर। नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। वो एक्चुअल में आपने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि ए जो है वो पी का एड्रेस स्टोर कर रहा है। हाँ, ए पी का एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट। फिर वो हाँ एड्रेस स्वैप हो रहा है, और एड्रेस स्वैप होगा तो फिर उसके अंदर की वैल्यू भी स्वैप हो रही है। करेक्टली, यही लॉजिक है इस पूरे का कि इंस्टेड ऑफ कि हम दोनों की वैल्यू स्वैप करें, अगर हमने दोनों का वो मेमोरी एड्रेस ही स्वैप कर दिया तो वैल्यू ही स्वैप हो गई। ये थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, ज्यादा अच्छा तरीका लगता है। राइट। तो ये, इसको एक्चुअल में दो चीज की हमें पॉइंटर की क्या जरूरत है, मैंने थोड़ा बहुत इससे समझ आ गई। रेफरेंस में हम यूज कर सकते हैं, रेफरेंस में ऐसे ही काम करते हैं, पॉइंटर ऐसे ही काम करता है कि इधर से आगे मूव करता है। लिंक लिस्ट एक टॉपिक है जहाँ बहुत यूज होता है पॉइंटर, लिंक लिस्ट ट्री, इन सब में। वरना अभी के लिए इतना नहीं समझा। और फंक्शन का यूज समझा कि फंक्शन लाइक ये कोड बार बार ना लिखने की वजह से हम एक फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना इधर? एक है वो स्वैप हाँ बाय बोलिए। वैल्यू में क्यों रन नहीं हुआ वो। स्वैप बाय वैल्यू में एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही वो पी क्यू यहाँ से पी क्यू वैल्यू लिया 510, फिर वो 510 वो स्वैप हाँ बाय वैल्यू जो फंक्शन है उसमें इंट ए में आ गया 5 और इंट बी में आ गया 10। फिर पूरा ये कोड रन हुआ तो क्या हुआ, टेम्प ने ए ले लिया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू, सिंपल पॉइंट में क्या हुआ, बी में अब आ गया 5 और ए में आ गया 10। बट हाँ। ये लोकल वेरिएबल है, लाइक ए और बी में रिटर्न तो कर नहीं रहा हूं, तो अच्छा, ये हाँ, ए और राइट बी राइट इधर है। राइट। हाँ, ओके। तो वो पी क्यू को कुछ हो नहीं पाई, ये एड्रेस था इसलिए पी क्यू में चेंजेस हो गए, वरना ये अपने अंदर ही रह गए, ये इशू हो गया। ओके। एक बार वॉइड स्वैप बाय वैल्यू जो था, हाँ उसको एक बार इंट या कुछ और टाइप से करके रिटर्न करे, एक बार ए और बी की वैल्यू, तो जस्ट फॉर द अगर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ए और बी की वैल्यू रिटर्न करके देखे अगर एक बार, ताकि इससे भी हो जाए। एक मिनट, अगर मैं रिटर्न सिर्फ अभी के लिए एक ही करता हूँ, एक ही अभी के लिए, और मैंने यहाँ पे एक बनाता हूँ तो, बट मैं फिर पी क्यू में नहीं डाल रहा, मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, या फिर मैं अगर सिर्फ हाँ क्यू में असाइन कर सकता हूँ ऐसे वैल्यू। ओके, क्यू इक्वल्स टू किया मैंने इधर के लिए, हाँ फिर क्यू को प्रिंट ही करना भूल गया। क्या करता, सबसे नीचे करता हूँ सी आउट एंड लाइन, क्यू एंड लाइन। सॉरी, क्यू की जगह वन डाल दी। 5। अभी इसमें मैंने मतलब दोनों ने किया, बस इसको दिखाने के लिए किया था कि कैसे दिख रहा है। तो जब हम स्वैप बाय वैल्यू में रिटर्न ए कर रहा हूँ, ए में जो अपना 5 चढ़ा था, हाँ ए में 5 चढ़ा था, हाँ, उसके बाद वो वैल्यू मैंने क्यू में डाल दी। राइट। और फिर वो क्यू में जब मैंने असाइन कर दी,
तब वापस से रेफरेंस ने इसको स्विच किया और फिर क्यों एक मिनट रुक जाइए, कोड थोड़ा बड़ा था उसके कारण वरना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बोलने में। यहाँ पे कैसा करना होगा? अगर मैं बिफोर स्वैपिंग में 510 था, आफ्टर वैल्यू स्वैपिंग में पी में 5 चढ़ा और क्यू में स्टिल 10 ही रहा। मोस्टली मेरे को जिसका कॉन्सेप्ट लगता है वो लोकल और उसका ही लगता है कि लोकल वैल्यू ले लेता है वो फंक्शन। लाइक एक लोकल का वैल्यू होता है, ग्लोबल का वैल्यू होता है, तो इसने ग्लोबल की वैल्यू चढ़ा दी। बाकी क्यों ने एक मिनट रिटर्न, अगर ये ए लोकल वैल्यू है, ए की जगह नहीं नहीं। अगर मैं एक यहाँ पे बनाऊं जैसे कि टेम्प में मैं वापस से ए की वैल्यू डाल देता हूँ, लोकल वैल्यू का इशू आता है। रिटर्न टेम्प, हाँ वो डाउट अच्छा था एक्चुअल में। अगर हम स्वैप बाय वैल्यू में रिटर्न करें वैल्यू और वो रिटर्न वैल्यू फंक्शन से करें तो क्या होता है? नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, स्वैप बाय वैल्यू में वैल्यू ही जा रही है अंदर। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ओके। गॉट इट। एक मिनट रुकना, मैं दिखाई देता हूँ ज्यादा सही होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे वो जो 10-5 है वो स्वैप बाय वैल्यू के सी आउट से हुआ और आफ्टर वैल्यू यहाँ पे डाला नहीं गया, इसलिए वो 510 ही रहा। यस। ओके।
एरे है और मतलब एक सिंगल एरे 2D एरे स्ट्रक्चर यूनियन। हाँ। यस वी कैन कंक्लूड। बस एक बार ये क्या मतलब कल से टाइमिंग वगैरह क्या होगा वो बता देंगे क्या? 5 to 7 एवरी वीकेंड, 5 to 7। ओके, डन, फिर चलेगा। ओके, और वो ग्रुप वगैरह बना देता हूँ मैं, उसमें आप। हाँ, श्योर श्योर श्योर, ठीक है, चलेगा। और ये इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे अवेलेबल होंगी? ओके, डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।